Hello students, today in this lecture I will discuss with you perfectly in elastic collision and the elastic collision in two dimensions. Okay, the elastic collisions in one dimensions they were already discussed with you. So today I will start up with perfectly in elastic collision. Now says देखिए बेटा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जो कोलाइडिंग बॉडीज हैं वो कोलाइड करने के बाद सेपरेट आउट नहीं होती, बल्कि एक सिंगल पार्टिकल की तरह मूव करती हैं या सिंगल बॉडी की तरह मूव करती हैं। बात समझ आ गई? देखिए, लेट अस सपोज से इट इज द बॉडी ए एंड इट इज द बॉडी बी. द बॉडी ए इज मूविंग विद द वेलोसिटी से u1 in the forward direction. The body A is moving with the velocity say vector u1 in the forward direction. The body B is moving with the velocity say vector u2 in the forward direction. Now let us suppose say that both the bodies they are moving along the same straight line. Both the bodies they are moving along the same straight line. Okay. Now if suppose say u1 is greater than u2, बेटा अगर बॉडी A का स्पीड बॉडी B की स्पीड से ज्यादा होगा तो बॉडी A बॉडी बी को हिट करेगी पीछे से. हिट करने के बाद अब ये दोनों बॉडी सेपरेट आउट नहीं होंगी. तो जब ये दोनों बॉडी सेपरेट आउट नहीं होंगी तो ये दोनों बॉडीज एक सिंगल पार्टिकल की तरह या एक सिंगल कंपाउंड बॉडी की तरह मूव करेंगी. ओके. अब क्योंकि दोनों बॉडीज आफ्टर कोलिजन सेपरेट आउट नहीं हो रही हैं तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है दैट विल बी इक्वल्स टू 0. ओके. द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू 0. तो सेस डेफिनेशन में the collision is perfectly inelastic if the bodies, or we can say the colliding bodies, if the colliding bodies does not separate out after collision and they continues to move as a single body. Got it, sirs? So the collision is said to be perfectly inelastic if the colliding bodies does not separate out after collision and they continues to move as a single body and the coefficient of restitution it will be equals to 0. तो सिर्स आप पहले इसको कॉपी करें, फिर कैलकुलेशंस मैं आपको दे रहा हूं. अब कैलकुलेशंस के लिए सिर्स आपने ये वाला फिगर कॉपी करना है. ओके. ये फिगर ऑलरेडी आपने कॉपी कर लिया, मैंने आपको लास्ट टाइम नोट करने के लिए बोला था. आप कंसिडरेशंस लिखें. कंसिडर द बॉडीज ए एंड बी हैविंग द मासेस m1 and m2. बॉडीज ए एंड बी हैविंग द मासेस m1 and m2 मूविंग विद द वेलोसिटीज वेक्टर u1 and वेक्टर u2 in the same direction along the same straight line. Full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखे if u1 is greater than u2 then the body A will hit the body B from behind. Full stop. After collision both the bodies stick with each other and does not separate out, rather they continues to move as a single body with the velocity
वेक्टर v, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखें, ड्यूरिंग द परफेक्टली inelastic collision the linear momentum of the system is conserved. So अब देखिए सर, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, so we can say, let us suppose say pi vector be the linear momentum of the system before collision. Okay, so since the linear momentum of the system before collision is written as the linear momentum of the body A and the linear momentum of the body B. Okay, we are going to call this as the equation number first. Let us suppose say Pf vector be the linear momentum of the system after collision. So since this vector Pf is supposed to be the linear momentum of the system after collision, then the linear momentum of the system after collision is written as say m1 plus m2, that is the mass, the sum of the mass of the body A and the body B multiplied with the common velocities vector v. Okay, now since no external force is acting on the body, so the linear momentum of the system before collision, it will be equals to the linear momentum of the system after collision. यहां तक बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? कॉपी करें आप इसको। सो यस, यहां तक कॉपी करने के बाद की कैलकुलेशन मैं दिखा रहा हूं आपको। Now since we have to just write out the linear momentum of the system before collision, it will be equals to the linear momentum of the system after collision, that is m1 u1 vector plus m2 u2 vector. It will be equals to m1 plus say m2 multiplied with vector v. So this vector v is written as m1 u1 plus m2 u2 divided by m1 plus m2. Got it? ओके, तो बस ये याद रखना है आपने, लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी ए प्लस द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी बी डिवाइडेड बाय द मासेस ऑफ द टू बॉडीज. ओके, और वी कैन से that is the common velocity v is written as the linear momentum of the body A before collision plus the linear momentum of the body B before collision divided by the total mass of the system m1 plus m2. ओके, तो सिंस यहां पर ये आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कंप्लीट होता है. ओके, आप इसको कॉपी करें. अब सिंस इसके बाद करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस. मतलब स्टूडेंट्स, कोलाइडिंग बॉडीज ए और बी पहले स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करेंगी. बॉडी ए का स्पीड बॉडी बी से ज्यादा होगा, तो बॉडी ए बॉडी बी को पीछे से हिट करेगी. हिट करने के बाद दोनों बॉडीज अब की बारी डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेंगी. क्लियर? देखिए, elastic collision in 2 dimensions.
Let us suppose say it is the body A, the mass is m1, it is moving with the velocity say vector u1. It is the body B, the mass is m2, it is also moving with the velocity say vector u2 in the same direction. तो बेटा मान लेते हैं कि पहले दोनों बॉडीज ए और बी लेट अस सपोज से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है. दोनों बॉडीज पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है बिफोर कोलिजन. ये स्टोरी है बिफोर कोलिजन. ओके, नाउ ड्यूरिंग कोलिजन, जब कोलिजन होगा तो स्वयं बॉडी ए बॉडी बी को पीछे से हिट करेगी. क्लियर? आफ्टर कोलिजन, दोनों बॉडीज ए और बी डिफरेंट डायरेक्शंस में फ्लाई ऑफ करेंगे. मान लेते हैं लेट अस सपोज इट इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इट इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड इट इज द नेगेटिव वाई एक्सिस. मान लेते हैं कि बॉडी ए v1 वेलोसिटी से मूव करती है एंड v1 वेलोसिटी इज अलोंग or the angle between the direction of vector v1 and the positive x-axis is supposed to be alpha. And after collision, जो बॉडी b है उसका वेलोसिटी लेट अस सपोज वेक्टर v2 और बॉडी b का वेलोसिटी वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है लेट अस सपोज दैट इज बीटा. क्लियर? अब हमें क्या करना है? अब हमें सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करना है along the x-axis before collision and after collision. तो before collision और after collision में linear momentum bodies A और B का along x-axis पहले इक्वेट करेंगे. ठीक है? उसके बाद linear momentum of the bodies A and B along y-axis before collision and after collision उसको भी इक्वेट करेंगे. क्यों? क्योंकि linear momentum कंजर्व्ड है. तो आप ऐसा करें स्टूडेंट्स, पहले तो आप ये वाला फिगर कॉपी करें. ये फिगर कॉपी करने के बाद मैं आपको कंसिडरेशन लिखवा रहा हूं, आप एक बार कॉपी कर लें. यस सर, नेक्स्ट लाइन में कंसिडरेशंस लिखें. कंसिडर द बॉडीज ए एंड बी हैविंग द मासेस m1 and m2 moving with the velocities vector u1 and vector u2 along positive x-axis. Full stop. Next line में लिखें, if u1 is greater than u2 then the body A will hit the body B from behind. Full stop. Next line में लिखें, suppose the bodies A and B after collision moves with the velocities vector v1 and vector v2 in the xy plane as shown in the figure. Okay? अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुने. ओके, सबसे पहले आप लिखें the linear momentum of the system before collision along positive x-axis. तो फ्रेंड्स लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन आपने लिखना है. लेट अस सपोज से pix vector is the linear momentum of the system along positive x-axis before collision. So it can be written as m1 u1 vector plus m2 u2 vector. m1 u1 vector plus m2 u2 vector. बात समझ आ रही? फिर लिखें आप, फिर लिखें the linear momentum of the system along y-axis before collision.
तो स्टूडेंट्स पी आई वाई लिख रहे हैं, तो ये लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के अलोंग लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो स्टूडेंट्स यहां पर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखिए, एंगल बिटवीन दिस वेक्टर u1 एंड दिस पॉजिटिव वाई एक्सिस इट इज 90। तो स्टूडेंट्स हम वेक्टर u1 का कंपोनेंट लेंगे अलोंग वाई एक्सिस, इसी तरीके से वेक्टर u का भी कंपोनेंट लेंगे अलोंग वाई एक्सिस। सो इट इज रिटन एज m1 u1 cos 90 क्लियर प्लस m2 u2 cos 90। तो हम यहां पर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो पी आई वाई इज रिटन एज cos 90 जीरो होता है, 0 प्लस 0, सो दिस पी आई वाई इट विल बी इक्वल टू 0 क्लियर। तो पहले हमें लीनियर मोमेंटम लिखना है बॉडीज ए और बी का, बॉडीज ए और बी का अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बिफोर कोलिजन। उसके बाद हमने बॉडीज ए और बी का लीनियर मोमेंटम लिखना है अलोंग वाई एक्सिस, ये भी बिफोर कोलिजन। तो फ्रेंड्स यहां तक स्टोरी था बिफोर कोलिजन क्लियर। पहले हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लीनियर मोमेंटम लिखा सिस्टम का बिफोर कोलिजन, फिर हमने वाई एक्सिस के अलोंग लीनियर मोमेंटम लिखा सिस्टम का बिफोर कोलिजन। अब बात करेंगे फ्रेंड्स आफ्टर कोलिजन की, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखें द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम along x axis after collision। आफ्टर कोलिजन x एक्सिस के along लिख रहे हैं, तो इसको हम pf वेक्टर x से डिनोट कर रहे हैं, pfx से डिनोट कर रहे हैं। पहले बॉडी a का लीनियर मोमेंटम लिखेंगे along x एक्सिस, हम x एक्सिस के along लिखना चाहते हैं, तो बॉडी a की वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे x एक्सिस के along। सो फ्रेंड्स वी कैन से दैट in magnitude this is written as say m1 v1 cos alpha। बॉडी ए का लीनियर मोमेंटम अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मैग्नीट्यूड वाइज प्लस m2 v2 cos बीटा, लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ आ गई बात। नेक्स्ट लाइन में लिखें द लीनियर मोमेंटम of the system along y-axis after collision। अब देखिए सिस्टम का लीनियर मोमेंटम लिखना है along y-axis, ओके। आफ्टर कोलिजन की बात हो रही है, तो ये आफ्टर कोलिजन है, तो इसको लिखते हैं से पी एफ वाई, इसको भी मैग्नीट्यूड वाई से लिखते हैं क्लियर। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो देखिए वेक्टर v1 का कंपोनेंट आएगा पॉजिटिव y-axis के along, so it will be m1 v1 sin alpha, m1 v1 sin alpha। बॉडी बी का लीनियर मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, अब देखिए बॉडी बी का जो लीनियर मोमेंटम है अलोंग नेगेटिव y एक्सिस आएगा, तो इसलिए यहां पर नेगेटिव का साइन डालेंगे, m2 v2 sin बीटा। बात समझ आ गई। तो फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अलोंग y एक्सिस, फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अलोंग, पहले हमें एक्स एक्सिस का लिखा है, फिर हमने वाई एक्सिस का लिखा है। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी है आफ्टर कोलिजन क्लियर। अब क्या करेंगे, हमने लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन लिख लिया, हमने लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस भी लिख लिया। अब क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो we are going to say that the linear momentum it will be conserved। the linear momentum is conserved मतलब x एक्सिस के along जो linear momentum है सिस्टम का बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन वो इक्वल। इसी तरीके से linear momentum सिस्टम का बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन y एक्सिस के along जो y एक्सिस के along है वो भी इक्वल क्लियर। बस करना क्या है, आप यहां पर हम मैग्नीट्यूड्स कैसे करेंगे, आप इस कैलकुलेशन को कॉपी करें। यस सर सर या अब ध्यान से देखिए,
Now, since no external force is acting on the system, since no external force is acting on the system, so we can say that this Pix in magnitude, it will be equals to Pfx. The linear momentum of the system before collision along x-axis, it will be equals to the linear momentum of the system after collision along x-axis. तो दोनों x-axis के along जो linear momentas हैं उनको हम equate करेंगे. तो सिर्फ linear momentum of the system before collision in magnitude, it is written as say m1 u1 plus say m2 u2. Clear? Okay. Or linear momentum of the system along x-axis after collision is written as, it is m1 v1 cos alpha plus m2 v2 cos beta. Clear? तो ये x-axis के along जो linear momentas थे before collision and after collision हमने equate कर दिए. इसी तरीके से also we can say that this Piy, it will be equals to Pfy. Linear momentum of the system before collision along y-axis, linear momentum of the system after collision along y-axis. Linear momentum of the system before collision along y-axis, it was 0. So 0, it will be equals to the final linear momentum of the system along y-axis. It is given by this equation. So we are going to write this as m1 v1 sine of alpha minus m2 v2 sine of beta. Clear? So this implies that this m1 v1 sine of alpha, it will be equals to m2 v2 sine of beta. Got it? Okay. तो स्टूडेंट्स ये दो इक्वेशंस ऑब्टेन हो गई हैं और अगर ये इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस आता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये 3 मार्क्स में आएगा. ओके, आप इसको कॉपी करें. यस स्टूडेंट्स डन. तो स्टूडेंट्स यहां तक आपका वर्क पार एनर्जी कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हमने रोटेशनल मोशन स्टार्ट करना है. रोटेशनल मोशन के अंदर हम पहले सर्कुलर मोशन के बेसिक्स करेंगे. सर्कुलर मोशन के बेसिक्स करने के बाद फिर हम रोटेशनल मोशन को आगे कंटिन्यू करेंगे. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे. ओके, एंड द रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर.